नमस्कार दोस्तों। विटामिन डी के बहुत सारे सप्लीमेंट्स, विटामिन डी का होने वाला टेस्ट और पाई जाने वाली कमी बार बार हमें ये याद दिलाती है कि क्या हम विटामिन डी के ऊपर उतना ध्यान दे रहे हैं जितना ज़रूरी है। दोस्तों, विटामिन डी कितनी प्रकार के होते हैं? विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री, इन सब में क्या अंतर है और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है और क्या इनके सोर्सेज हैं? ये जानकारी होनी हमें बहुत ज़रूरी है और आज हम इस वीडियो में इस जानकारी को आपके लिए लेके आए हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक। जब तक कि मैं वापस आऊं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप कहाँ कहाँ से हमें सुन रहे हैं। So, friends, I take you today to today's video, that is, what's the difference between vitamin D, vitamin D2, and vitamin D3. And I'm your friend in health, Dr. Sandeep Jassal from Live Life More Health and Wellness. And आज सबसे पहली जो बात आपसे करनी है वो यही है कि पहले बताएं कि विटामिन डी है क्या। दोस्तों, इसका जो केमिकल नेम है उसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। Vitamin D can be found naturally in some foods. It is also added to a lot of processed foods, जितने कि जिसे हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। बहुत सारे फूड्स को विटामिन डी के साथ फोर्टिफाई किया जाता है। कई तरह की सप्लीमेंट्स की फॉर्म्स में आपको मिलता है। विटामिन डी enables your body to absorb calcium from your डाइट। आपकी डाइट से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू एब्जॉर्ब phosphorus, another critical mineral that your body needs for strong teeth, bones, as well as helping with tissue and cell repair. और विटामिन डी टू क्या है दोस्तों? अनलाइक सम अदर vitamins that are assigned various numbers to denote that they are different nutrients, vitamin D2 and D3 are practically the same nutrient but are types of calciferol with just a few differences that are worth pointing out. आपको पता होना चाहिए कि फर्क क्या है। जो D2 है, also known as ergocalciferol, comes from plant and fungus sources, vegetarian sources. It's mainly produced by artificially exposed mushrooms or yeast to ultraviolet light, with the resulting products used in supplements or to fortify various foods. लेकिन विटामिन डी थ्री जो है, दैट इज कॉलीकैल्सीफेरॉल एंड टेंड्स टू कम फ्रॉम फिश और मीट। जो कॉलीकैल्सीफेरॉल है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से आता है। हाउएवर, D3 is also the form of vitamin D that humans can produce themselves. Our bodies are actually able to synthesize D3 when our skin is exposed to direct sunlight. जब सूरज की रोशनी हमें लगती है तो हम D3 बनाने में कामयाब हो सकते हैं। Given the well-known risk of excessive sun exposure, most people these days don't get enough sun to make sufficient amounts of D3। इसी वजह से उनमें D3 की भी कमी रहती है। अब D3 और D2 में से बेटर कौन सा है? Although D2 and D3 are very similar, there are a couple of other differences worth noting. वो क्या है? Given their sources, people who observe vegan diet may prefer to take vitamin D2. Obviously, जो लोग वेजिटेरियन रहना चाहते हैं उनको D2 ही पसंद आएगा, क्योंकि उसका सोर्स जो है वो प्लांट सोर्स है। लेकिन as a supplement, D2 also tends to be little cheaper than vitamin D3 supplement। वो इसलिए क्योंकि उसमें एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। What body functions does D2 versus D2 support? Both forms of D have same benefits so far as they help your body absorb calcium and phosphorus. Both forms of vitamin D also work well to sustain other systems critically to good health, aiding the muscle development and recovery, as well as keeping our nervous and immune system functioning properly.
Having said that, some research has shown that vitamin D3 may be more readily absorbed in the body and more effectively than D2. इसका मतलब क्या हुआ, जो एनिमल सोर्सेज वाला विटामिन D3 है वो बेटर एब्जॉर्ब होता है विटामिन D2 से, जो कि वेजिटेरियन सोर्स का विटामिन डी है। सो द बेस्ट सोर्सेज कौन से हैं विटामिन डी के? ऑयली फिश, जो फैटी फिश जिसे हम बोलते हैं, सामन, मैकरेल, ट्यूना, सार्डिन्स, और फिर एग योक्स, जो लोग एग कंज्यूम करते हैं, या फिर रेड मीट, या फिर लिवर। Vitamin D is added to some foods too, including breakfast cereals, plant milks, and fat spreads. आपके मिल्क प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है। Some mushrooms, especially those irradiated with यूवी लाइट, जिनके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाती है, कंटेन विटामिन D2, but mainly vitamin D2 is derived from yeast and fungal sources in order to fortify other foods and be used in supplements, milk and other dairy products, non-dairy milk such as soy milk or almond milk, and some cereals are foodstuffs, common foodstuffs fortified with vitamin D2. So दोस्तों, विटामिन D3 के सोर्सेज क्या हैं? फैटी एंड ऑयली फिश, सामन, ट्राउट, स्वोर्ड फिश, सार्डीन्स, एग योक्स, रेड मीट्स, लिवर। लेकिन विटामिन D3 इज आल्सो यूज्ड टू फोर्टिफाई वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑरेंज जूस, जो आप ऑरेंज जूस मार्केट में पैक लेते हैं। लेकिन कौन कौन सी तकलीफें हैं जो ये दर्शाती हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है? विटामिन डी की कमी में आपको कैल्शियम की कमी होती है। अकॉर्डिंग टू क्लीवलैंड क्लिनिक, as many as 1 billion people worldwide suffer from some form of vitamin D deficiency, such a deficiency can lead to conditions ranging from bone and joint deformities, heart disease and other circulatory problems, immune disorders and neurological and psychological problems. दोस्तों, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं है, और करेक्ट कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, आपको सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। चिल्ड्रन एंड अंडर 12 मंथ्स की एज में 10 mcg टू 10 माइक्रोग्राम्स या फिर 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। चिल्ड्रन और टीन्स फ्रॉम 1 to 18 years of age 50 mcg या 600 IU। एडल्ट्स 19 to 70 15 mcg या फिर 600 IU रोज की आपकी जरूरत है। एडल्ट 71 एंड ओल्डर, उनकी 20 mcg थोड़ी बढ़ जाती है, that is 800 IU, and people who are pregnant or breastfeeding, their requirement is 15 IU, जितनी की चिल्ड्रन और टीन की होती है। दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तब तक, जब तक कि हम फिर से मिलें, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे वेल इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इस नेक काम में हमारा साथ दें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप जसल अभी लूंगा आपसे इजाजत। मिस्टर अनिल कालरा, प्रणाम संदीप जी, प्रणाम आपको भी बहुत बहुत। आज आप जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। तो हम अब लेंगे आपसे इजाजत। इस बीच अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो ड्यूरिंग लाइव आप स्टार्स हमें डोनेट कर सकते हैं, उसकी हमें सपोर्ट मिलती है, उससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है। So right now it is 11:36 p.m. over here in Vancouver time, और सोने का टाइम हो गया है। थोड़ी थकान भी है, आपको लग भी रही है। आज हमें, आपको दिख रही होगी, आज हमारी एक वर्कशॉप थी ओबिसिटी यानी कि वजन कम करने के सस्टेनेबल तरीकों के ऊपर। हिंदू टेम्पल बर्नबी एक कम्युनिटी है, एक शहर है वैंकूवर के साथ में, वहाँ पर उनके मंदिर में, वहाँ पर हमारी एक टॉक थी जो कि बहुत वेल रिसीव की गई। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आए और हमें जवाब देके हमेशा अच्छा लगता है। आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछें। तो चलिए मिलेंगे नया वीडियो लेकर के वेंसडे विजडम के रूप में। तब तक दीजिए इजाज़त। स्टे ब्लेस्ड, स्टे वेल इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। बाय बाय।